Alright, good morning. How are you all? I hope you are fit and fine at your places, and you must be preparing for your PT1 exams also. Okay, so let's just start with our class today. We will revise polynomials in this class. Okay, alright. So what do you mean by a polynomial? Quickly giving you a revision, because you have already done this chapter. I'm just giving you a quick revision. Alright. So what do you mean by an algebraic expression? Algebraic expression is a combination of constant variables which are connected to each other by plus, minus, divide or multiply operations. Yes. So algebraic expressions are the expressions which consist of what? Consist of constant variables. What are constants? 2 and 5 are constants. क्या है ये? कांस्टेंट. वेरिएबल क्या है? x और y. This is an algebraic expression, right? We can write like this also. This is also an algebraic expression. But if I talk about polynomials, polynomials are special algebraic expressions. Polynomials क्या होते हैं? Special algebraic expressions हैं जिसमें power of the variable should be a whole number. मतलब पावर जो होनी चाहिए वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, राइट? इट शुड बी अ होल नंबर. जैसे लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. इफ आई टॉक अबाउट 2x² + 5, यहाँ पे x की पावर 2 है. 2 इज अ होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल. बट इफ आई टॉक अबाउट 2/x + 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल. व्हाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल? जस्ट लुक हियर. ये दिस x, you remember laws of exponent, is x raised to the power 1. आप इसको जब सॉल्व करते हो, this is x raised to the power -1. just look here, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? नेगेटिव है, राइट? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है. अगर इफ आई टॉक अबाउट 2√x + 7, अगेन don't take y also, you can take it like this also. now just look here. If I talk about this number 2√y, if I talk about this expression, this is also not a polynomial क्योंकि √y मतलब y raised to the power half. 2 into y raised to the power half. So this is also not a polynomial. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए, the power of the variable should be a non-negative integer. Power of the variable should be a non-negative integer. Fine. Okay, but if I talk about, for example, let's just take √2x + 7y. This is an algebraic expression as well as a polynomial. Why this is a polynomial? Just look here. Power of the variable, I am not talking about constants. √2 पे है, ठीक है? x और y पे नहीं है. रूट जो है वो किस पे है? 2 पर है, हमारे वेरिएबल्स पे नहीं है. इसका मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल. अगर x पे रूट होता तो x की पावर हाफ हो जाती, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता. सो व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद नॉन नेगेटिव पावर ऑफ द वेरिएबल. उसमें पावर ऑफ द वेरिएबल जो होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर आई मस्ट से. ओके, ऑलराइट. सो जब हम नाउ जस्ट टॉक अबाउट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन. जस्ट लुक हियर. highest power of the variable, just look here. If I talk about 2x³ + 3x + 7, here this is a polynomial in one variable क्योंकि एक ही वेरिएबल है. now यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म में x raised to the power 3, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3. here x raised to the power 1, और यहाँ है भी, इसका मतलब क्या है? assume x raised to the power 0. yes, of course I can, because x raised to the power 0 is actually 1. So highest power of the variable here is 3. This implies that degree is 3. Degree 3 is there, so it's a cubic polynomial, right? So degree 2 polynomials are called quadratic polynomial. Just take it like this. So this is now quadratic polynomial. Okay, so we will be studying about quadratic polynomials here, because cubic
polynomials has been removed from your syllabus. Okay, so just have a look here now. Okay, if I just take an example, suppose if I am taking y is equals to 2x plus 5. Just look here, this is what type of polynomial if I talk about. This is a linear polynomial. Why it is a linear polynomial? Because degree is 1. So when I plot this linear polynomial on graph, I will always get a straight line. मुझे क्या मिलेगी? हमेशा एक straight line बनेगी. हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ी है? 9th standard में we have done this. कि whenever we plot a linear graph, we will always get a straight line. Whenever we plot a linear polynomial, linear equation we will talk about, then we will always get a straight line. हमेशा क्या मिलेगी? हमको एक straight line मिलेगी. So this is a linear polynomial. तो जब भी आप linear polynomial को ग्राफ पे represent करते हो, okay, I just can name it like px, polynomial in terms of x. तो आप ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे, you will always get a straight line. लेकिन अगर आप डिग्री 2 polynomial means quadratic polynomial को ग्राफ पे प्लॉट करते हो, so you will get what? You will get a parabola. Parabola is shaped like U. This is parabola. Okay, so whenever you will plot quadratic polynomial on graph, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो आपको क्या मिलेगी? कौन सी शेप मिलेगी? यू विल गेट अ पैराबोला. आई होप यू अंडरस्टूड. दिस इज पैराबोला, यू शेप. एंड व्हेन वी विल प्लॉट cubic polynomial on graph, we will get a curve like this. Cutting, just look here, we will get a curve like this. Or just look here, or we can say we will get a curve like this. Okay, so we will get a curve when we plot cubic polynomial on graph. Okay, now with graph, can you find out the number of zeros of a polynomial? Yes, we can. How? Just have a look here. Take Alright, what do you mean by zeros? एक simple सा example ले लेती हूँ मैं. 2x plus 4. Just take this example. This is a polynomial, right? This is a polynomial. This is a degree 1 polynomial, or we must say it's a linear polynomial. एक simple example से I'm just trying to explain you कि क्या होता है zero का मतलब. x की ऐसी value जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की रिजल्ट वैल्यू कितनी आए? 0. x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाए? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग x इज इक्वल्स टू -2. सो लुक हियर, 2 into -2 -4 plus 4, इट इज गोइंग टू बी 0. इट मीन्स x जब हम -2 रखते हैं, सो x इज इक्वल्स टू -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ, सो लेट्स जस्ट टेक हाउ विल आई प्लॉट. आई जस्ट टेक इट बिकॉज ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए होगा. सो मैं इसको अज्यूम कर रही हूँ y इज इक्वल्स टू 2x plus 4. अब 0 का क्या मतलब होगा? 0 का मतलब वो वैल्यू होगी जब हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0. इट मीन्स जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी. मतलब y 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. राइट? y 0 होने का क्या मतलब है ग्राफ में? इसका मतलब x एक्सिस पे लाई करेगा. ये जो -2, 0 ये कहाँ लाई करेगा? ये x एक्सिस पे लाई करेगा. और बहुत सिंपल वर्ड्स में हम लोगों ने ये चीज़ की हुई है. सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ, ग्राफ अगर तुमको दिया हुआ है, जितनी जगह पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस हमारे होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस कर्व, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. कितने जीरोस होंगे? 1 2 3. इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसमें कितने जीरोस होंगे? 1 2. जितनी जगह पे वो x एक्सिस को मीट करता है वो उतने जीरोस होंगे.
अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसके कितने जीरोज हैं? इसमें कोई भी जीरोज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस को नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, वी मस्ट से, वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन। अब जीरोज कितने होते हैं? अगर मैं बात करूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो उसकी ग्राफ अगर हम कर्व की बात करते हैं कितनी जगह पे मैक्सिमम कट करती है? वो 3। सो इट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके कितने जीरोज होंगे? 3। इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कितने जीरोज होंगे? 2। राइट, हो सकता है 2 इक्वल आ जाए, 2 अलग भी आ जाए, हो सकता है रियल रूट्स ही एग्जिस्ट ना करें। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कितने जीरोज होंगे उसके? मैक्सिमम 2, लीनियर पॉलिनोमियल के 1। ओके, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जीरोज कितने हो सकते हैं? 3। मतलब 3 ऐसी वैल्यूज निकलेंगी जिनको हम प्लॉट करेंगे तो पूरे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओके, सो दैट्स हाउ वी जस्ट whenever we get an equation, so आप इक्वेशन और आई मस्ट से पॉलिनोमियल, जब हमारे पास पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो उसकी डिग्री देखकर वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि कितने जीरोज हैं। अगर डिग्री 2 पॉलिनोमियल है 2 जीरोज है, डिग्री 3 पॉलिनोमियल है इसका मतलब 3 जीरोज है, और लीनियर पॉलिनोमियल इसका मतलब मैक्सिमम 1 जीरो, डिग्री 3 पॉलिनोमियल मैक्सिमम 3 जीरोज, डिग्री 2 पॉलिनोमियल मीन्स मैक्सिमम 2 जीरोज। अब जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? जस्ट हैव अ लुक हियर। अगर मैं बात करती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक ओनली। ओके, अगर अब मुझे इसके जीरोज निकालने, ओके, मुझे इसके जीरोज निकालने, डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, सो व्हाट शुड आई डू? आई डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर मुझे डिग्री 2 पॉलिनोमियल के जीरोज यहाँ पे निकालने हैं तो आई हैव टू डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? जस्ट हैव अ लुक हियर। यू रिमेंबर व्हाट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? ओके, 4 2s 8, I hope I am not going to explain this to you because you already know this, right? So x will take common, you will get x plus 4, and here I will take minus 2, so this is going to be x plus 4. देखो x plus 4 x minus 2, एंड मैंने ये 0 क्यों रखा है? ऐसा ही पॉलिनोमियल था बट फिर भी मैंने इसको 0 क्यों रखा? क्योंकि आई वांट टू फाइंड आउट द 0, वो वैल्यू चाहिए मुझे x की जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? 0 के, इसलिए मैंने भी उसको अज्यूम कर दिया 0 लिखे। ओके, नाउ x plus 4 फर्स्ट फैक्टर है हमारा, x plus 4 is 0, सो x की वैल्यू हो गई -4, x minus 2 0 है तो x की वैल्यू हो गई 2। ओके, ये हमारे 2 जीरोज हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लुक हियर। अब मैं इसके किस एग्जांपल के थ्रू आई एम गोइंग टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। कैसे करेंगे? जस्ट हैव अ लुक हियर। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका जनरल फॉर्म अगर हम बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट? सो जस्ट लुक हियर, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 1, b की बात करें कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 2, कांस्टेंट टर्म की बात करें तो क्या है? -a। बेटा वी हैव ऑलरेडी डन दिस, हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, वी आर जस्ट डूइंग द रिवीजन, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी। सो जस्ट लुक हियर, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट b है, x का कोएफिशिएंट 2 है, सो इट मींस b इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? -a। ओके, नाउ जीरोस की जब हम बात करें, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जीरोस आई एम अज्यूमिंग अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं, राइट? सो जस्ट लुक हियर, अगर हम बात करते हैं, I am not going through just derivation how I have come to this result because we just need to do a quick revision of the chapter. Okay, so just have a look here. तो sum of zeros, alpha और beta 2 zeros है, यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ? -4 और 2। Just look here, it's a quadratic polynomial, 2 zeros होंगे। Just look, a मतलब 1, b मतलब 2, कांस्टेंट टर्म मतलब -a, ठीक है? अल्फा और बीटा मतलब मैं बात कर रही हूँ 2 जीरोस की। अब क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स?
अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू सी अपॉन ए। चेक करें इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू अस आर गिविंग दिस relationship. A is what? 1, B is what? 2, constant term is what? minus A. Now let's just verify. Alpha plus beta, what is our alpha? Our alpha is minus 4. So I'm just verifying this relationship, okay? It should be equals to this, right? Alpha plus beta, what is our alpha? minus 4. What is our beta? 2. कितना आया? minus 2. माइनस का साइन लगाया, b अपॉन a। देखो जरा हमारा b क्या है? 2, a क्या है? 1। जस्ट लुक हियर, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, ये माइनस साइन इस रिलेशनशिप की बात हो रही है। b मतलब यहाँ पे 2 है, a मतलब 1 है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा? c अपॉन a के। यानी सम ऑफ जीरोस is always equals to minus b upon a, and product of zeros will be equals to c upon a. All right, now अगर हमको दो जीरोस पता है, let's just take an example. अगर मैं बात करूं, सपोज मेरे दो जीरो, सिंपल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, दो जीरोस हैं, इट मींस अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे पता है। कैन आई फ्रेम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ऑफ कोर्स इसके दो जीरोस हैं, तो कितने अगर ये दो जीरोस हैं सो इट मींस इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? तो अगर हमको टू जीरोस पता है, कैन वी फाइंड आउट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस वी कैन फाइंड आउट। कैसे? जस्ट हैव अ लुक हियर। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए वी विल यूज दिस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखो जरा एक्स स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं? ये जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। बेटा वी हैव अ डेरिवेशन फॉर दिस, बट आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन व्हेन आई डिस्कस दिस चैप्टर। ये चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट डूइंग द रिविजन, सो आई एम टेकिंग इट सो क्विकली, राइट? ओके, ना एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है ना। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मुझे दो जीरोस पता है क्लास, ये और ये जीरोस हैं, इनसे मुझे क्या करना है? मुझे अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वापस बोल रही हूँ, अगर मुझे दो जीरोस पता है तो उससे मैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाऊंगी? उसके लिए आई विल यूज दिस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा क्या है मेरा 2, बीटा क्या है मेरा 3, एक्स की जगह एक्स, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऐसे ही हो सकता है मुझे सम ऑफ जीरोस पता हो। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा पता हो। सपोज वो दिया हुआ है माइनस 3, सम ऑफ जीरोस, ओके? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर सपोज मुझे दिया हुआ है 7, कैन आई फ्रेम quadratic polynomial here? Yes, of course I can do it. कैसे? वही सेम चीज, स्क्वायर माइनस, अभी अल्फा प्लस बीटा जो इट इज ऑलरेडी बीन गिवन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है व्हिच इज -3। फाइन, जस्ट लुक हियर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है इसलिए मैंने लगाया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा व्हिच इज 7। So this is going to be x squared plus 3x plus 7. So हमारा quadratic polynomial क्या होगा? This is our quadratic polynomial. All right? Okay. So let me just ask. अगर मैं बात करूँ आपसे 2x squared plus 5, do you think it's a quadratic polynomial? Of course it's a quadratic polynomial. तो देखो a की वैल्यू क्या होगी? 2। b मतलब x का कोएफिशिएंट, क्या यहाँ पे x है? नहीं है, सो b is going to be 0 and constant term is 5, or if you wish to write you can always write, देखो our polynomial was like this। अब मैंने b को 0 क्यों लिया? क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। फिर भी आपको जनरल फॉर्म लिखनी है, आप लिख सकते हो 2x squared plus 0x plus 5।
So any constant term will be 5 and b is what? 0, right? b है ही नहीं हमारा, 0 into x is again 0. हमारे पॉलिनोमियल की जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, we are not changing anything, okay? 2x square plus 5 can be written as 2x square plus 0x plus 5. भाई x है ही नहीं यानी उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0. So अगर आपसे पूछा जाए what is the sum of the zeros here, तो हमको पता है कि sum of zeros किसके इक्वल होता है? माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है ना. अगर आपसे sum of zeros they ask you, it is equals to minus b upon a. So minus b तो हमारा 0 है, a हमारा 2 है, which is equals to what? 0. So sum of zeros will be 0. I hope you understood, right? Okay. Now what do you mean by division algorithm? Okay. क्या होता है division algorithm? Division algorithm, जैसा I'm just taking an example. Just look here. अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन की बात करूँ and if I talk about suppose 17 को मैं 2 से डिवाइड कर लूँ, so this is going to be right this. So ये जो dividend है is equals to divisor into quotient plus remainder. This is what? This is division algorithm. This is division algorithm. इसको हम अलजेब्रा में भी अप्लाई कर देंगे. Just look here. यानी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा. अगर मैं एक पॉलिनोमियल px को डिवाइड करती हूँ gx से, मेरा क्वेश्चन अगर qx आ रहा है और रिमाइंडर मेरा rx आ रहा है, तो ये px जो होगा ये किसके इक्वल होगा? qx into gx प्लस रिमाइंडर. सो हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिविजन एल्गोरिथम. ओके, ऑलराइट. नाउ जस्ट डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन विद यू. ओके, ऑलराइट. Suppose you have got a question like this. Just taking the example of NCERT only. Okay, we just need to find, for example, this is the question: 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. This is the polynomial, and we need to find its zeros. Okay, tell me what is the degree of this polynomial? 4. तो इसका मतलब इसके कितने zeros होंगे? 4 zeros. उसमें से 2 zeros हमको given है. 2 zeros are root 2 and minus root 2. Fine. Those zeros we already know. Now we need to find the rest 2 zeros. Okay. Degree 4 polynomial है, 4 zeros होंगे, right? So इसमें से 2 zeros हमको given है, बाकी 2 zeros हमको निकालना है. तो क्या करेंगे? It's very much easy. आपको 2 zeros पता है. ओके, यू रिमेंबर आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी इन 9th स्टैंडर्ड. अगर x इज इक्वल्स टू 2 0 है तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर, राइट? सो सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दीज 2 zeros, तो इससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, 2 zeros है, इट मींस आई कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. देखो 2 zeros पता है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं. सो दिस इज जस्ट लुक हियर, रूट 2 माइनस रूट 2, दिस इज गोइंग टू बी 0. देखो प्लस माइनस रूट 2x, देन वी हैव रूट 2 इनटू माइनस रूट 2 x स्क्वायर. दिस इज कैंसिल, सो 0x इज व्हाट? 0 एंड रूट 2 इनटू रूट 2 इज दिस x स्क्वायर माइनस 2. नाउ ये दोनों जीरोस हैं, इनसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो इसका फैक्टर होगा. फैक्टर होगा मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो जो क्वेश्चन होगा वो भी फैक्टर होगा और रिमाइंडर 0 आएगा. अगेन 2 zeros हमको दिए थे, तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया. हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2. फाइन. अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 2 को, आई एम सो सॉरी, दिस हमारा जो पॉलिनोमियल है px,
इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, बिकॉज ये क्यों डिविजिबल होगा, क्योंकि रूट 2 और 2 माइनस रूट 2 और रूट 2 जो है वो क्या है, दीज आर द जीरोज। रूट 2 और माइनस रूट 2 जीरोज थे, तो उससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा वो फैक्टर होगा। अगर x इज इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू रूट 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2 आर द जीरोज। तो इसका मतलब ये जो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो इसका फैक्टर होगा, और अगर वो इसका फैक्टर है तो इसका मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी आई गेट द रिमाइंडर 0। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट द रिमाइंडर 0, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आई एम जस्ट नॉट गोइंग थ्रू डिविजन प्रोसेस, ओके, आई नो एवरीबॉडी नोज। सो आप जब इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट दिस क्वेश्चन, ओके, एंड यू विल गेट द रिमाइंडर 0। आपको एक खुद करके देखना है डिविजन, ओके। आपका क्वेश्चन ये आएगा और रिमाइंडर ये आएगा। वापस बता रही हूँ, 2 जीरोस गिवन थे, 2 तुमको निकालने थे क्योंकि डिग्री 4 है, तो 2 जीरोस से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म किया। वी आर जस्ट ट्राइंग दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये इसका फैक्टर होगा, इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा क्लास। नाउ इट मीन्स डिविजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि इस पॉलिनॉमियल को मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इनटू दिस प्लस 0, ओके। सो इट मीन्स मैं इस पॉलिनॉमियल को क्या लिख सकती हूँ, दिस इनटू दिस प्लस 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। इससे तो मुझे 2 जीरोस, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इसके 2 जीरोस मुझे पता है रूट 2 एंड माइनस रूट 2, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके मुझे बाकी 2 जीरोस मिल जाएंगे, राइट। सो 2 1 2, आई होप यू रिमेंबर हाउ टू डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। So just look here, we have x minus 1 and 2x minus 1 equals to 0, तो x की वैल्यू 1 और यहाँ पे 2x is equals to 1, तो x की वैल्यू हाफ। यानी रूट 2 और माइनस रूट 2 तो हमारे जीरोस थे, बाकी 2 जीरोस निकालने थे वो ऐसे निकलेंगे। हमने क्या किया, रूट 2 और माइनस रूट 2 से क्या किया, एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से इसको डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन ये आया। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, देन यू विल गेट द 2 zeros, okay। So that's it for now, thank you so much।